Hello everyone, welcome to my today's video, that is pour plate technique. Before that, watch, share and like my videos and subscribe to the channel to get new updates daily. So let's see about the pour plate method. So basically we will see first definition. What is pour plate method? The technique used for the isolation and counting of viable microorganisms present in the liquid sample, which is added along with or before molten agar medium prior to its solidification. That means this is the technique used for the isolation and counting of viable microorganisms present in a liquid sample. That means we will use liquid sample for the isolation, which is added, that means liquid sample containing specimen is added along with or before molten agar. That means we will use molten agar, in that we will add liquid sample and through this we will isolate the organism, particular specimen. Okay, this is the basic definition of pour plate method. Generally it is used to isolate facultative aerobic microorganisms, microaerophilic microorganisms and anaerobes. Now we have seen facultative aerobes, that means the organisms which need oxygen but can also survive in the absence of oxygen, and microaerophilic aerobes, that means even in a small quantity of oxygen they can survive, and anaerobes, that you know that in absence of organism, the organisms which grow called as anaerobic microorganisms. Okay, so for them pour plate method can be used. This is simple, easy and less resource consuming technique used in the laboratory. Then it is used to count microorganisms by enumerating colony-forming units within semi-solid surface medium. We will see in this method that what is semi-solid surface medium. In this technique we will use semi-solid agar, you can say, that is molten agar, which is used prior to its solidification. That means solidify होने के पहले हमें उसको यूज़ करना है फॉर पोरिंग. ओके, now principle. Generally this is based on the fact that when an agar medium mixed with a microorganism, that means जो भी हम agar यूज़ करने वाले हैं, that is molten agar used with a microorganism, जो भी लिक्विड सैम्पल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, एंड इट इज़ इंक्यूबेटेड, एंड उसको हम इंक्यूबेट करेंगे. ईच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल मल्टीप्लाई एंड ग्रो सेपरेट कॉलोनीज विद इन द अगार मीडिया. दैट मीन्स जब हम ऑर्गेनिज़म यूज़ करेंगे प्लस मोल्टन अगार जो भी है उसको हम पोर करेंगे, दैट इज़ पोरिंग, तो उसको इंक्यूबेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? सेपरेट डिस्क्रीट कॉलोनीज मिलेंगे. लेकिन कहाँ पे मिलेंगे? विद इन द अगार मीडियम, दैट मीन्स ऑन द सरफेस एंड अलॉन्ग इन द सब सरफेस ऑफ द अगार मीडियम. ना रिक्वायरमेंट्स क्या होती है नीडेड फॉर द पोर प्लेट मेथड? फर्स्ट वन, वी विल नीड लिक्विड स्पेसिमेन एज यूजुअल, then solid culture media for the plating. Okay, and test tubes we will need for the serial dilution. I have said already that for spread plate technique and pour plate technique you will need serial dilution technique to dilute the liquid sample or to dilute the specific specimen used for the isolation. Okay, then sterile distilled water or sterile broth for the serial dilution. Micropipette graduated, that means generally you can change the you can change pipette measurement और calibration ना. सो मतलब जो भी हम माइक्रो पिपेट यूज़ करेंगे हमें उसको कैलिब्रेट करना आना चाहिए. दैट मीन्स इट शुड बी रेंज इज़ फ्रॉम 0.1 ml to 1 ml. Okay, generally 0.1 ml or 1 ml sample is used for the pouring. Then other laboratory equipments, but all should be sterile. This is the flow diagram of pour plate method. So generally serial dilution of specimen is carried out, as I have said already, that we have a sort of specimen, it is serially diluted, then the media preparation is done, that is you need solid agar medium for plating, and liquid broth will need, or a nutrient broth, you can say nutrient broth you need in a molten form. That means it should be solidified, but before solidification you should use them. मतलब molten agar, that means वो solidify होने के पहले ही हमको उसे यूज़ करना है, but at a appropriate temperature.
अगर ज़्यादा हॉट होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डाई, और अगर कोल्ड होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो टेम्परेचर ही नहीं मिलेगा जिसमें वो ग्रो हो सके. ओके, सो यू शुड यूज़ मोल्टन अगार मीडिया. So this media is needed. Then after the inoculation, now 2 methods of inoculation. First one क्या यूज़ कर सकते हैं, dispense 1 ml of diluted sample in a center of petri plate. मतलब जो diluted sample जो हमने लिया है उसको हम 1 ml petri plate पे dispense करेंगे, मतलब उस पर पुट करेंगे थ्रू माइक्रो पिपेट. एंड फिर हम क्या करेंगे, जो भी मोल्टन अगार लिया है वो उस पर पोर करेंगे, एंड थ्रू द स्वर्लिंग और थ्रू द मिक्सिंग हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे. ये दिस इज़ द फर्स्ट मेथड. एंड सेकेंड मेथड जो जनरली यूज होती है वो क्या है, डिस्पेंस 1 ml ऑफ डाइल्यूटेड सैम्पल इन अ स्टेराइल 15 ml मोल्टन मीडिया एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर. मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी मोल्टन मीडिया है 15 ml का मोल्टन मीडिया हमें लेना है, उसमें हम क्या करेंगे 1 ml ऑफ डाइल्यूटेड सैम्पल ऐड करेंगे. ओके, असेप्टिकली. ऑल दिस प्रोसीजर शुड बी कैरिड असेप्टिकली इन द लैब. ओके, तो असेप्टिकली हम उसको ऐड करेंगे, शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, देन पोर द मिक्स्ड सैम्पल इन अ पेट्री डिश. फिर हम उसको पेट्री डिश पे पोर करेंगे. देन मिक्स्ड गेट जेंटली बाय स्वर्लिंग द प्लेट. जनरली हम उसको एस शेप में या 8 शेप में हम उसको ऐसे 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 स्वर्ल करते हैं प्लेट को. ओके, देन इंक्यूबेट फॉर 24 आवर एट 37 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे. सो ये देखो डायग्राम है. अकॉर्डिंग टू दिस पोर प्लेट टेक्निक इज कैरिड आउट. देखो डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सैंपल है, 1 ml लिया हमने सीरियल डाइल्यूशन के बाद. फर्स्ट इसके पहले क्या होगा, सीरियल डाइल्यूशन करेंगे. देन डाइल्यूटेड बैक्टीरियल सैंपल हमने लिया 1 ml, उसको मिक्सड किया 15 ml मोल्टन अगार में एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. जनरली 37 डिग्री तक का टेम्परेचर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, फिर हम उसको पोर करेंगे पेट्री प्लेट पे जिसमें न्यूट्रिएंट अगार होगा. ऑलरेडी हमने जो प्लेट्स बनाई, फिर वो पोर किया हुआ उसको हम स्वर्ल करेंगे. वी विल स्वर्ल इट, देन इंक्यूबेट करेंगे. तो हमें कैसा इंटरप्रिटेशन दिखेगा या कैसे हम देखेंगे, कॉलोनीज विल ग्रो ऑन अगार सरफेस. जैसे अगार सरफेस पे कॉलोनीज ग्रो हो गई है एंड सब सरफेस पे भी ग्रो होती है. ओके, सो इस अकॉर्डिंग टू दिस या फिर इसका यूज़ करके हम अप्रोप्रिएट डिस्क्रीट कॉलोनीज काउंट कर सकते हैं बाय पोर प्लेट मेथड. सो दिस इज़ द फ्लो डायग्राम ऑफ द पोर प्लेट टेक्निक. नाउ इंटरप्रिटेशन कैसा, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो दैट जो भी लिटरेचर के हिसाब से जो क्वांटिटी चाहिए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी इन द रेंज बिटवीन 20 to 300 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml. अगर इसमें दो इंटरप्रिटेशन यू कैन से, इफ़ कॉलोनीज आर ऑफ सेम टाइप, दैट मीन्स जो भी हमें कॉलोनीज दिखे हम मॉर्फोलॉजिकली मतलब हम उसका शेप देख के डिसाइड करेंगे कि सैम्पल हैड ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रोबियल जनरा. ये हम सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते. वी शुड कैरीड आउट सम डिफरेंशियल टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द कॉलोनीज. ओके, फिर हम अगर दूसरा क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है, इफ़ कॉलोनीज हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, मतलब अगर अलग अलग मॉर्फोलॉजी के अलग अलग कलर की कॉलोनीज अगर ग्रो हुई प्लेट पे, देन सैम्पल कंटेन मिक्स पॉपुलेशन. ये हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं. ओके, दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट. आफ्टर उसका हम क्वालिटेटिव टेस्टिंग क्वांटिटेटिव टेस्टिंग करने के बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसिमन और कॉलोनी. और फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कैन बी प्यूरिफाइड बाय सब कल्चरिंग यूजिंग स्ट्रीकिंग. वी हैव सीन कि जो भी हमें प्योर कॉलोनीज लगेगी कि या दिस इज़ द स्पेसिमन, देन इट शुड बी सब कल्चर्ड टू गेट प्यूरिफाइड. ओके, then these are the applications of pore plate technique. It is used to isolate and enumerate bacteria and fungi. Then food and pharma industries में हम pore plate technique use कर सकते हैं. And it can be used to isolate and enumerate microorganisms from soil to study soil microflora. As we have seen that microorganisms present everywhere in the nature. Okay, सो सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड देयर आर डिफरेंट मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन द सॉइल. सो हमें उसको एन्यूमरेट करना हो, डिफ्रेंशिएट करना हो, आइसोलेशन करना हो तो पोर प्लेट मेथड यूज़ कर सकें. एंड दिस इज़ द वेरी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर
identification of microorganisms from the soil, एंड टू जनरेट ग्रोथ कर्व मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने के लिए, ग्रोथ एक्टिविटी देखने के लिए, ग्रोथ पैटर्न देखने के लिए भी हम पोर प्लेट मेथड यूज़ कर सकते हैं थ्रू द डाइल्यूशन एंड पोर प्लेट मेथड. सो दिस इज़ द पोर प्लेट मेथड ऑफ द isolation of culture, pure culture. We have seen all three types of method, that is streaking, spread plate method and pour plate method. So please watch, share and like to the videos, and if you have any doubt please ask into the comment section and subscribe to my channel. Thank you.